चलो लेट्स स्टार्ट। ऊपर देख। A few years back, if someone had told me that one day I'd get to see the northern lights with my own eyes, I probably wouldn't have believed them. And yet, here we are, standing in the Arctic Circle, about to start one of the most magical journeys of our lives. "2025 is predicted to be one of the best years to witness this rare natural wonder. And if there's one place on earth that promises front row seats, it has to be this Nordic country." और हम आ चुके हैं the happiest country in the world, that is Finland, Lapland. Finland sits right inside the Arctic Circle, which makes it one of the best places on the planet to witness the aurora borealis, or the northern lights. These dancing lights are actually caused by charged particles from the sun colliding with gases in our planet's atmosphere. And when they do, the sky lights up in waves of green, pink, and purple, like something out of a dream. The show usually happens on clear, dark nights from September to March, when the polar nights take over the north. Planning a trip to Finland can be overwhelming, especially because Finland is slightly an expensive destination. There's travel, warm gear, stays, activities, and of course, no guarantee that you will actually see the northern lights. Because they depend on so many factors like solar activity, weather, and clear skies, things that none of us can control. But you can make the most out of it by planning other activities in Lapland, in addition to the northern lights. That's why our advice is, don't just plan the trip only around chasing the lights. Because even if they don't show up, Lapland has so much more to offer. Husky sleigh rides, reindeer safaris, snowmobiling, ice fishing, and a lot more. So this vlog is all about bringing you with us to answer the questions, share the experience, and hopefully to catch a glimpse of the magic of the northern lights. Welcome to episode 1 of our Finland travel series. We are Manas and Priyanka, and this is Onward Escapes. Let's escape into Finland and chase the northern lights together. As you might be knowing, we are a travel couple from India, and to get here, we flew all the way from New Delhi to Rovaniemi, with a quick stopover in Helsinki, the capital city of Finland. Since our flight was landing pretty late at night, we had booked a cozy Airbnb in Rovaniemi just for the first night, before heading further north into the Arctic to Sariselka. कल जब हम पहुँचे थे हमने बनाई थी मस्त हैदराबादी बिरयानी, और अभी ब्रेकफास्ट में हमारा है पोहा, जो कि थोड़ा गीला हो चुका है, बट इट्स ओके।
और वो हमारा डाइनिंग टेबल है। और ये बेडरूम कोजी सा, क्यूट सा। और ये हम तैयार हो चुके हैं अपनी फिनलैंड ट्रिप के लिए। तो हम जा रहे हैं रोवानिमी से काकलक्सटन रिजॉर्ट के लिए और अभी हम बस स्टेशन पे हैं। तो हमने टिकट बुक कराई थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बस आने वाली है एट 9:50। और हमारी जो जर्नी जो है वो 3 आवर्स की होगी। इससे पहले एक बस थी 9 o'clock की, जिसकी हमें टिकट मिली नहीं, तो हमने बुक कराई है 9:50 की। अगर आप भी काकलक्सटन रिजॉर्ट जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये बस स्टॉप है और यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आप बस ले सकते हो। For our first stop, we have come to Sariselka, a quiet little village far up north in Finnish Lapland. We will be staying in the world-famous Kakslotunen Arctic Resort. They are the ones who invented these igloo stays for the first time in Finland. We will be spending our first night in a cozy wooden chalet tucked into the snow, and the next in a glass igloo, hoping to fall asleep beneath a sky painted with auroras. These glass igloos are made with thermal glass that keeps the inside warm and prevents snow from accumulating on top, giving a clear view of the sky. तो हम पहुंच चुके हैं काकलक्सटन रिजॉर्ट पे और अभी हमारे चेक इन को थोड़ा सा टाइम है, तो अभी हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हमें पता चला कि देयर इज़ एन आर्ट गैलरी, जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, और एक प्लानिटेरियम एरिया है जहाँ पे टार है, जहाँ से बहुत अच्छा सनसेट व्यू दिखता है। तो बेसिकली हमने सोचा है कि एक्टिविटी बेसिकली क्या है, तो एक मूवी दिखाई जाएगी विच इज़ अबाउट लाइक 30 मिनट इन कोलैबोरेशन विद नासा, और बताया जाएगा कि नॉर्दर्न लाइट कैसे फॉर्म होता है, क्या फिनोमिना है। तो ऑन द स्पॉट भी आप टिकट बुक कर सकते हो, या फिर जब आपने होटल की जब आपने करी रिजर्वेशन करी हो तो यू कैन बुक द एक्टिविटी ऑनलाइन ऑल्सो। तो अभी हमने पे किया है 82 यूरो फॉर 2 पर्सन, और बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप भी इस एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हो। In Finland, statistically speaking, most auroras occur in the northern part of the country, Lapland. Clouds and snowfall is not heat. The belief is partly grounded in fact. That's why the polar lights visible in northern skies were said to be created by the fox of fire. Breakfast is from 7 to 11. It's buffet and there's no need to book a table in advance. It's there where the tables are. There. Yeah, and then you have it included. Here, yes. And also you have included dinner. Dinner is from 5 to 8. Your car and the entrance. The first sitting time is 5, the last sitting time is 8, and it's every half an hour. तो हम पहुंच चुके हैं काकलक्सटन रिजॉर्ट में, और जो कि ये रिजॉर्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ईस्ट विलेज और वेस्ट विलेज। तो हमारा जो अकोमोडेशन है 2 दिन का वो हमने करा है वेस्ट विलेज में। तो अभी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है रिसेप्शन से, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, और हमें अभी पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया इन्होंने कि कैसे कहाँ कौन सी चीज़ है और कौन से हमारा स्टे कहाँ पर है, और ऑल द एक्टिविटीज़, डिनर टाइमिंग, ब्रेकफास्ट टाइमिंग सब कुछ बता दिया ये लोग हमें। तो अभी हमारा जो रूम शैले है वो है 11 पे। हमने 2 दिन का अकोमोडेशन यहाँ पे बुक किया है, 1 फॉर शैले एंड 1 फॉर ग्लास इग्लू। तो अभी के लिए हम जाएंगे अपने शैले में और कल हम जाएंगे ग्लास इग्लू में।
यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, लगेज जो है खुद कैरी करना पड़ता है अपने रूम्स में, और इन्होंने स्लेव प्रोवाइड किया है जहाँ पे हम अपने बैग को रखेंगे और ले जाएंगे इसको घसीटते 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 अपने रूम्स में। देखते हैं कैसा होता है। और स्नोफॉल होने लग गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फेस लाइट धीरे धीरे आ रही है। तो यहाँ डिसीजन एरिया, और अभी थोड़ा सा शाम हो चुकी है, बस और इसमें लाइटिंग और अच्छा लगेगा। और दूर वहाँ पर उसके अंदर रेनडियर के अंदर इन लोगों ने लाइट लगाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें और हैं क्योंकि बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। तो वहाँ पे एक ब्रिज भी दिख रहा है। तो यस, वी आर इन कालक्रस्टन रिजॉर्ट, और बहुत ही अभी एकदम बहुत ही एक्सपीरियंस होता है। अभी मानस ने उठा लिया है, सामान कैरी करने का इंतज़ाम पूरा कर लिया है अभी, इसलिए हम इस पे हम अपने रखेंगे बैग। अब कैसे कैरी करना है ये भी एक टास्क है। चलो ले चलो इस घोड़े को। हाँ, इधर धीरे धीरे गिरना नहीं चाहिए। हाँ, पुश भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं। और अगर हाथों में ठंडी नहीं लग रही हो तो जो एक रस्सी दिया है उससे भी गिर सकते हैं। फाइनली पहुंचने वाले हैं अपने रूम में। थोड़ी मेहनत मैं भी कर लेती हूँ। आई थिंक मैं तुझसे अच्छे से खींच रही हूँ, इससे अच्छे से मैं भिजा रही हूँ। ये मैंने बहुत बार गिराया, ऐसे मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। यहाँ तो कुछ है या डेड एंड है? आजा 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 आजा। तो पैर इतने फिसल रहे हैं और ऊपर से पहुंच चुके हैं हम अपने स्टे में नंबर 11। निकालेंगे अपना लगेज और इसको लेने के लिए रिसेप्शन वाले ही आ जाएंगे। इतना काम तो कर सकते हैं वैसे वो। तो बैग ले लेते हैं अपने, छोटा वाला मैं रख लेता हूँ। अभी भारी वाला बैग लेके आएंगे। मानस लेके आइए आराम से आराम से। हाँ, ओह कितना सुंदर अद्भुत नज़ारा। यहाँ हम रहने वाले हैं एक रात के लिए। 2 रात नहीं, इसमें 1 रात, फिर हम जाएंगे इग्लू में। ओह, और ये हमारा रूम है। वाओ, हाँ, बाहर जो ठंडी थी और अंदर जो गर्मी है उसका कोई मैच नहीं है। लुक एट दिस, ये पूरा वुड का बना हुआ है। वाओ, और यहाँ पे हम फायर प्लेस भी है, जो कि रिसेप्शन ने बताया था कि अगर आपको ये चीज़ मिल चाहिए वुडन। ओह, हमको एक्स्ट्रा लार्ज वाला दिया गया है। वाओ। अपग्रेड कैसे मिला? और हमें अपग्रेड मिल गया है। ओह ऑसम। 4 बेड है और वो 2 बेड है, और ये फायर प्लेस ये है। और यहाँ पर ये जो है, अच्छा वाओ। और रिसेप्शन वाली ने बताया था कि ये जो है ये एलोरा अलार्म है,
भगवान जी प्लीज़ इसको रात भर बजाते रहो। और ये व्यू है बाहर का, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और तो हम पहुंच चुके हैं अपने रूम के अंदर और आज के लिए हमने बुक किया था एक शैले। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा एक वुडन शैले है, बहुत ही ज़्यादा औसम लग रहा है, पूरा वुड का बना हुआ है। ये आपका बेड है और वहाँ पे मैं देख सकती हूँ जो पहली मेरी नज़र की जो मुझे रिसेप्शन में बताई थी कि ये है आपका अलोरा अलार्म जो कि हमेशा बीप करेगा जब भी नेकेड आइज से नॉर्दर्न लाइट्स दिखेंगी। एंड वी हैव टू प्रेस दिस बटन, मतलब बंद करने के लिए। देन अगेन जब दोबारा से नॉर्दर्न लाइट दिखेगी फिर से ये बजने लग जाएगा। तो आज तो वैसे क्लाउडी है, लग नहीं रहा है चांसेस, बट या फिंगर क्रॉस। तो अभी उधर साइड चलते हैं। हाँ पूरा वुड का बना है यार। अभी यहाँ पर जो है ये है आपका फायर प्लेस, इसके लिए वुड और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ये पेड है, रिसेप्शन में बताया था। अभी हमने तो बुक किया था एक नॉर्मल 2 लोगों के लिए, बट हमें ये एरिया भी मिला। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो यस ये 2 बेड है और ये चढ़ने के लिए चीज़ें भी है। अभी हम दिखाएंगे टू अवर बाथरूम। ये है बाथरूम और ये है फिनिश का पर्सनल सोना जो कि हम ये एक्सपीरियंस करेंगे। चीज़ें भी है, अभी इसका टेम्परेचर सेट करना होगा। एंड करेंगे बारी फिनिश होना। हाँ हाँ एक्सपीरियंस करेंगे। पूरा मतलब पूरा उसका बना हुआ है बहुत। और उन लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ग्रीन टी हॉट चॉकलेट भी दी है, तो हाँ हम इसको भी पी सकते हैं। और छोटा सा एक किचन एरिया भी दिया है गर्म पानी करने के लिए, मैगी वैगी बनाने के लिए और दिस थिंग या। और काफ़ी स्पेशियस रूम है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, बाहर बर्फ लगी हुई है। यहाँ से भी जो विंडो से है ये मेन जहाँ से हम आए थे वहाँ का व्यू भी बहुत औसम लग रहा है। वहाँ भी कुछ कुछ अभी लाइट्स जल चुकी है। और मैं देख रहा था उस वाले रूम से भी एक विंडो है जो कि बहुत, वहाँ से भी व्यू बहुत प्यारा है। तो या ओवरऑल बहुत अच्छा स्टे होने वाला है ये। गुड मॉर्निंग। तो कल का दिन बहुत सही था जहाँ पे हम रुके थे वुड लॉक शैले पे, और अभी चेकआउट का टाइम वहाँ से हो चुका है और अभी हम आ चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट एरिया पे। एंड मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बहुत सारे वेज ऑप्शंस, नॉन वेज ऑप्शन और वेगन ऑप्शन भी हैं। सो मैंने अपना टेबल तो फुल तरीके से सेट कर लिया है बिकॉज़ लंच का नॉट श्योर कि हम करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज़ हमारी एक एक्टिविटी भी प्लान है और आज हम रुकेंगे ग्लास इग्लू में। सो 1 बजे चेक इन होगा उसका। तो अभी हम एक एक्टिविटी हमने यहाँ के थ्रू बुक करी थी, स्नो मोबाइल टूर है जो कि विच विल टेक अराउंड 2 to 3 hours। सो और हाँ, तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ बहुत सारी इंडियन फैमिली भी है बिकॉज ब्रेकफास्ट के ऑप्शन देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वी हैव उपमा, पोटैटो फ्राइज़ और वेजीज, पैनकेक, स्क्रैम्बल्ड एग, बीन्स। सो या और आगे कैसे हम अपना दिन स्पेंड करते हैं ये भी आपको बताएंगे। बाय द टाइम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो एक्सप्लोर करते हैं, टाइम लगेगा।
सो लैपलैंड फिनलैंड का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, सीइंग नॉर्दर्न लाइट्स। वो चीज़ तो मेन चीज़ है, बट वी विल बी डूइंग मोर एक्टिविटीज़। और क्या क्या चीज़ हम करने वाले हैं, वी विल बी डूइंग स्नोमोबाइल टूर, वी विल बी टेकिंग रेनडियर सफारी एंड अ हस्की राइड। और एक और चीज़ एक्टिविटी जो है वो इस ट्रिप की एक बहुत मस्त ट्रिप भी हम लोगों ने प्लान करी है, वो हम लोग आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। सो या वी आर इन फिनलैंड, लेट्स एक्सप्लोर फिनलैंड। सो हम पहुंच चुके हैं अपने स्नोमोबाइल एक्टिविटी के लिए और हमें ड्रेस मिल चुका है, बूट्स हमने ले लिए हैं और हमने सब इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिए हैं। तो यस, वी आर रेडी फॉर आवर स्नोमोबाइल एक्टिविटी, जो कि है 2 घंटे की चलेगी। अब देखते हैं कैसे जाती है। यस हेलो, left side we have a brakes also, and if you have to use brakes, always use brakes. Accelerator or motor braking is like a smooth braking, and this is a fast brake. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, तो हम बैठ चुके थे और ये हमारी राइड है। ये पूरी राइड जो है ये 1 आवर 20 मिनट्स की है। तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाई नहीं थी, तो आई थिंक पूरा 1 आवर 20 मिनट्स में से चलाएगा। तो यस, और अभी हमें क्विक ब्रेक के लिए इन्होंने अभी रुकाया हुआ है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इतने ज़्यादा क्लासेस हमें मिला, 15 मिनट का क्लास मिला इसके लिए कि कैसे चलाना है। और अभी हम अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेते हैं। और यस, जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हो, आगे पीछे सब लोग हमारे साथ, ये ग्रुप है हमारा, और फैमिली भी है छोटे बच्चों के साथ। वो आए हैं, वो खुद नहीं चलाएंगे, आई थिंक उन्हें वहाँ पर बैठने को एक सीट है। listen. I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, सेकेंड नाइट इन कार्कवेस्टन रिजॉर्ट। और आज का जो हमारा अकोमोडेशन है वो है ग्लास इग्लू में।
ये हमारा है ग्लास इग्लू नंबर 20 और मेरे आसपास आप देख सकते हो ये जो है ग्लास इग्लू के और अदर प्लेन यहाँ पे है। पूरा ये एरिया है ग्लास इग्लू का। सो अंदर मैं आप लोगों को ले चलती हूँ। यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार मैं देख चुकी हूँ बट फॉर द वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल मैं दिखाऊंगी अंदर क्या क्या है। तो आइए मेरे साथ। टाइम फॉर रूम टूर और एंटर करते ही वी हैव अ बाथरूम। तो अब दिखाते हैं बाथरूम कैसा है अंदर से। प्लीज़ प्लीज़। काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। और उसके बाद आई थिंक उस साइड है हमारा सोना विच इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, जो कि डिफरेंट था। वुडलॉक शैले से थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ये एंट्रेंस है जहाँ से मैं थोड़ा संभल के झुक के जाना होगा। एंड दिस इज़ आवर ग्लास इग्लू। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, अच्छा है। और यहाँ से नॉर्दर्न लाइट देखने का मज़ा बहुत ही सही होने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हो और भी ग्लास इग्लू है आसपास। इट्स वेरी नाइस। और मैं यहाँ पर जैकेट को लगाने के लिए इन्होंने यहाँ पर जगह दी है, कैटल प्रोवाइड करी है। तो अभी हम रह रहे हैं वेस्ट विलेज में एंड ये जो है ईस्ट विलेज से दूर है। और हमने ये एरिया इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आसपास। तो अगर आप रूम में बैठ के बोर हो गए हो तो आप और एक्टिविटी को भी इंक्लूड ले सकते हो। यहाँ पर बहुत आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और ग्लास इग्लू के भी आपको बहुत सारी कैटेगरी मिलेंगी, जिसमें हमें यहाँ पर है ये बेड विथ बाथरूम, जहाँ पे शावर एरिया नहीं होता है बहुत सारे इग्लू में। बट जैसे कि मैंने आपको दिखाया वी हैव अ शावर एरिया इन प्लस सोना। तो या दिस इज आवर ग्लास इग्लू व्हिच इज क्वाइट वेरी प्रिटी। रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे और एक अमेजिंग सी चीज़ हमें दिखी है। दिस इज़ द रिमोट कंट्रोल, जहाँ पे हम अपने प्यारे से बेड को ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अगर हमें देखनी है नॉर्दर्न लाइट्स या फिर आराम से सोना है या टिल्ट होके बैठना है। तो या ये मैंने अपने साइड का रिमोट को ऊपर किया है। और ये जाएगा नीचे। तो यहाँ बैठ के आराम से मैं ऊपर जाऊंगी, आराम से देखूंगी स्काई को। मन करेगा तो आराम से नीचे रिलैक्स होके सो जाऊंगी। So we are heading back to Rovaniemi और अभी हम ईस्ट विलेज के बस स्टेशन पे हैं। हमारा जो स्टे था वो वेस्ट विलेज पे था, तो इन लोगों ने हमें यहाँ पे बस स्टेशन पे छोड़ दिया है और हम बस का वेट कर रहे हैं। हमारी 8:50 की बस है और यस दिस इज़ अ सराउंडिंग। आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने बस स्टेशन पे छोड़ दिया। हमें लगा था कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम ईस्ट विलेज वो वहीं पे छोड़ेंगे और हम थोड़ा सा वहाँ पे घूमेंगे, बट नो चांस। सो yes, so time for a quick review about our hotel. So वैसे it was a fine stay, it was a good stay overall. I will rate it around 7 maybe 7.5। और मुझे हमारा जो स्टे था वो एक था वुडलॉक शैले में और एक था ग्लास इग्लू में। तो मुझे तो मतलब
वुड लॉक शैले ज़्यादा अच्छा लगा, मोर कंफर्टेबल लगा। ग्लास इग्लू इज़ जस्ट अबाउट, अगर नॉर्दर्न लाइट दिख रही है तो वो ज़्यादा बेटर है और थोड़ा एक फैसिनेटिंग है फॉर द फ्लिक्स एंड ऑल, तो वो तो हम मतलब बाहर भी खिंचा सकते हैं। और या सो ओवरऑल इट्स अ गुड स्टे और आई विल रिकमेंड, अगर आप लोग, डिपेंड करता है आपको कहाँ पर स्टे करना है, बट आई विल प्रेफर वुड लॉक शैले विच इज़ मोर कम्फर्टेबल। सोना भी था, स्पेशियस था। यस, एंड फूड वॉज एवरेज, इंडियन आपको मिल जाएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर देयर, शेफ़ भी इंडियन थे। और हाँ, इट वॉज फाइन। अगर ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस थे, कल हमें उपमा मिला था, आज हमें पोहा मिला, एंड ऑल वी हैव द स्क्रैम्बल्ड एग, ऑल दोज थिंग्स, इंडियन ऑप्शंस काफ़ी थे। डिनर में वी हैव दिस फिनिश ऑप्शंस, रेनडियर सूप एंड ऑल दोज थिंग्स, और वेज एंड नॉन वेज, ग्लूटेन फ्री, ऑल ऑप्शंस थे। फूड वॉज काइंड ऑफ ओके। या तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी फिनलैंड जर्नी का पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ तक का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल मैजिकल था, लेकिन इस सफ़र में बहुत कुछ बाकी है। मेनली गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ द मैजिकल नॉर्दर्न लाइट्स। हम इसे देख पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप हमारे साथ इस जर्नी का एक भी बार मिस ना करें। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस फिनलैंड सीरीज।